Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics. From that we have continuously revised the chapters. We have done number of the times the calculation of the various questions which is related to your macroeconomics as well as Indian economic development. So from the previous 4 to 5 classes we were uh, calculating or solving the sample paper which is recently updated by or introduced by published by the CBSE, so CBSE sample paper. So in the previous classes we were completed the macroeconomics part as well as the some questions of your math of total question of 17 marks of the which is related to the your macroeconomics, as well as we have also do some numerical questions or the theoretical questions which is related to your Indian economic development. Okay, so first of all we will recapitulate all the points, all the things whatever we have understand, whatever we have already done, and after that we will start with the some questions of your CBSE sample paper. Okay, so let's get started. Okay, so let's start with the section B. That is Indian economic development. Okay, Indian economic development, that is section B, right? So firstly we will start with the question number 18. It is of 1 mark. Question number 18 to 27, it is of 1 mark each. ये टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 10 क्वेश्चन. तो आपके टोटल क्वेश्चन 20 मार्क्स से क्वेश्चन आपके क्या होंगे? 20 क्वेश्चन आपके 20 मार्क के क्वेश्चन होंगे. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, क्वेश्चन नंबर 18. फिल इन द ब्लैंक्स दिया है. देन was the Indian finance minister in 1991 acknowledged for his capabilities to steer away the Indian economic crisis looming large in the erstwhile Indian economy. ठीक है, कह रहा है कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में जिन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज को दिखाया और एक इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर आया, आईईपी जिसको हम लोग 1991 बोलते हैं. तो फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम कौन थे? तो ऑप्शन दे रहा है इसमें. ए ऑप्शन इज सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी. बी ऑप्शन बी इज डॉक्टर मनमोहन सिंह. थर्ड वन इज प्रणब मुखर्जी and the D is Urjit Patel. So these all are the options of your question. That is कौन उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर था कंट्री का जब 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी. तो हमें पता है कि 1991 में जब इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उस टाइम जो भी फाइनेंस मिनिस्टर था वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह. और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नरसिम्हा राव. ठीक है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ when the new economic policy arrived in India in the 1991, right? Next question is question number 19, that India entered fill in the blanks is given here, stage of demographic transition.
transition after the year 1921. ठीक है, क्वेश्चन दिया है इंडिया एंटर्ड, fill in the blanks, then stage of demographic transitions after the year 1921. कि इंडिया कहाँ पे किस स्टेज में क्या की थी, एंट्री की थी. तो ऑप्शन दे रहा है कि फोर्थ स्टेज में, जब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर द 1921, जिसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी बोलते हैं, तो उसमें फोर्थ स्टेज पे एंटर की थी, सेकेंड स्टेज पे एंटर की थी, थर्ड स्टेज पे एंटर की थी और दी फर्स्ट स्टेज पे एंटर की थी. तो हमें पता है 1920 के टाइम इंडिया क्या है, सेकेंड स्टेज पे एंटर. देखिए ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा. देन 1 marks, you got also 1 marks in the second question. Now the next question is question number 20. So the question 20 is given with the assertion and the reason. Okay, so the question is with the assertion and the reason. Choose one of the correct alternative given below. So assertion, that is assertion. It is donated A. Next one is reason. इसका रीजन दिया होगा, एक assertion, एक स्टेटमेंट दिया होगा, उसका एक रीजन दिया होगा कि दो स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग बताएंगे कि ये जो स्टेटमेंट दे रहा है उसका नीचे रीजन दे रहा है, तो क्या ये रीजन उस वाले स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है या नहीं. तो है assertion है, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट and an importer of the finished consumer and the capital goods produced in Britain. कि इंडिया क्या है, एक्सपोर्टर हो गया था प्राइमरी प्रोडक्ट का और इम्पोर्टर हो गया था फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स का, विच इज प्रोड्यूस्ड इन दी ब्रिटेन, जो ब्रिटेन में प्रोड्यूस हो रहा था. ये आपका एक असर्शन है. इसका रीजन दे रहा है restrictive policy of the commodity production, trade, tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and the volume of the India trade. कि जो भी restrictive policy ब्रिटिशर्स की थी, ट्रेड की, टैरिफ की, डिफरेंट कोटाज इम्पोज कर दिया था, तो वो क्या कर दिया था, वो बहुत वर्स्ट तरीके से, बहुत एडवर्सली अफेक्ट कर रहा था इंडिया की वॉल्यूम को. इंडिया का जो भी वॉल्यूम था ट्रेड का, स्ट्रक्चर जो था, कॉम्पोजिशन था. इसलिए फर्स्ट क्या है, इसका रीज़न है. अब इसके नीचे आपके पास A, B, C एंड D ये दिया है. ए में कह रहा है कि असर्शन एंड रीज़न, जो भी असर्शन और रीज़न है दोनों ही ट्रू है, और ये जो रीज़न है वो क्या कर रहा है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का. पहला है आपका कि A एंड R बोथ ट्रू, दोनों ही ट्रू है, एंड रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसका दे रहा है, एक्सप्लेनेशन ऑफ A, दैट इज असर्शन. पहला ऑप्शन है. सेकंड कह रहा है A एंड R बोथ ट्रू, बट R doesn't give the not correct explanation of A. C1 is A is true and R is false. Next one is D is A is false and R is true. ये आपके पास क्या देगा, ऐसे आपके पास क्वेश्चन में असर्शन और रीजन दे देगा. फिर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा, अगर असर्शन और रीजन बोथ आर ट्रू और आर जो है रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए का. सेकंड आपके पास ऑप्शन दे रहा है कि ए एंड आर बोथ दोनों ही ट्रू है, बट जो आर है, जो रीजन है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन का. क्वेश्चन ऑप्शन सी इज ए इज ट्रू, ए क्या है वो ट्रू है, बट आर क्या है, रीजन जो है वो फॉल्स है. लास्ट कह रहा है ए इज फॉल्स, ए जो है असर्शन फॉल है, बट आर क्या है वो ट्रू है. तो आपको इसमें से कोई एक आंसर बताना है कि कौन सा है. फिर आप अपने क्वेश्चन अपने आंसर शीट में जो भी आंसर सही होगा ये करके 1 लाइन लिख दो. बट हम इसमें देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे. देखिए इसमें कह रहा है कि
फर्स्ट टाइम क्या कह रहे थे कि इंडिया क्या है, बस सिंपली वो क्या करती थी, इंडिया बेसिकली एक्सपोर्ट करती थी प्राइमरी प्रोडक्ट को और इम्पोर्ट कराती थी फिनिश्ड प्रोडक्ट को। तो ये तो स्टेटमेंट हमें असर्शन हमने पढ़ा है, क्योंकि यही इसके क्या थे, टू फोल्ड इसका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का रीज़न यही था। और फिर इसका ये दे रहा है कि इंडिया जो भी ब्रिटिशर्स थे उनके वो जो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी टैरिफ का, ट्रेड का, तो वो पूरा एडवर्सली अफेक्ट कर रहा था इंडिया के वॉल्यूम, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द ट्रेड, फॉरेन ट्रेड को। तो हाँ, इसी की वजह से तो ये सारे प्रॉब्लम हो रही थी कि हम लोग क्या कर रहे थे, बस सारे रॉ मटेरियल को भेज के और फिनिश प्रोडक्ट को अपने यहाँ यूज़ कर रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आप लिखोगे ए, दैट इज, ये वाली लाइन आप लोग को नीचे यहाँ पे लिख देनी है, दैट ए एंड आर बोथ ट्रू बट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यही लाइन आपको लिख के आपका क्वेश्चन नंबर 20 विल ऑल्सो बी कंप्लीट। ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन इसमें और दे रहा है, और में ही दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 का और है। क्या है देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, assertion and reason, choose one of the correct alternative given below. Assertion is the major policy initiative, okay, the major policy initiative that is land reform and the green revolution helped India to become the self-sufficient in the food grain production. कि जो भी मेजर पॉलिसी थी गवर्नमेंट की कि लैंड रिफॉर्म लेकर आया और ग्रीन रिवॉल्यूशन अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ, वो क्या कर रहा था, इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना रहा था इन दी फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में वो सेल्फ सफिशिएंट बना रहा था, ठीक है। रीजन इसका कह रहा है द प्रपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड, कि जो भी प्रपोर्शन पीपल का था वो डिपेंड जो भी थे एग्रीकल्चर पे, ये डिक्लाइन नहीं हो रहा था, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका दे दिया है, ओके। सो इसमें देखिए पहला जो है द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव जो लैंड रिफॉर्म का था, ये तो हाँ ठीक है, ये सेल्फ सफिशिएंट बनाया, बट जो प्रपोर्शन पीपल डिपेंडिंग एग्रीकल्चर के वो डिक्लाइन नहीं हो रहे थे एज एक्सपेक्टेड। ये ऐसा कभी सोचा ही नहीं गया कि अगर हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन कर रहे हैं या लैंड रिफॉर्म कर रहे हैं तो जो भी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे वो कम हो जाए, क्योंकि हम क्या थे, ब्रिटिशर्स के टाइम डिपेंडेंसी हमारी क्या हो गई थी, फॉरेन कंट्री पे हो गई थी, क्योंकि इवन हम लोग का जो भी फूड आइटम्स है वो भी इतने भी एबल नहीं थे हम लोग उनको प्रोड्यूस कर सके। इन दैट केस ये सोचा गया था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया जाएगा तो कंट्री क्या हो जाएगी, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, हम लोग एटलीस्ट फूड आइटम्स के लिए फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहे। इसका मेन मोटिव, इसका रीज़न ये नहीं था कि जो भी एग्रीकल्चर पे जो लोग बेस्ड हैं, जो डिपेंडेंट हैं, उनको हमको कम करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, असर्शन बोथ, ऑप्शन बी। ऑप्शन इसमें भी आपको वही सेम मिलेंगे कि असर्शन एंड रीजन आर बोथ, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज दी, जो रीजन जो दिया है इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ये फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड होगा बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट R is not correct explanation of the A. थर्ड हो जाएगा आपका that is A is true and the R is false. फोर्थ हो जाएगा A is false and the R is true. तो इसमें आपका B सही हो जाएगा, both assertion and reason are true but R is not correct explanation of A. ठीक है, then question number B is your correct answer. Okay, तो यही आपका हो जाएगा कि A and R are true but R is not correct explanation of A. Okay, so the next question is 21.
21. So read the following statement, assertion and reason, choose one of the correct alternative given below. ठीक है, आपका ये भी क्वेश्चन क्या है, assertion और reason वाला ही है, जिसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है. फर्स्ट कह रहा है assertion is given here, every year government fixes a target for the disinvestment of the public sector enterprise. ठीक है, हर साल क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है टारगेट ये फिक्स करती है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर. डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स सेल ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू द प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी सिक यूनिट्स होती हैं जो अच्छे से प्रॉपरली काम नहीं कर रही हैं, इवन दे आर नॉट एबल टू चेंज इन दी हेल्दी यूनिट, उनको हम लोग अगर हेल्दी यूनिट में कन्वर्ट करने के लायक भी नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन सारे इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड आउट कर देती है. ओके, सो एवरी ईयर गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स करती है टारगेट फॉर द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज. ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है डिसइन्वेस्टमेंट इज एन एक्सीलेंट टूल फॉर द डिस्कार्डिंग द लॉस इनकरिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज. कि डिसइन्वेस्टमेंट बहुत एक्सीलेंट टूल है कि जो भी लॉस इनकर हो रही है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, उसको लॉस को कम करने का. आपको ऐसा लग रहा है कि लॉस को कम करने का बेस्ट तरीका है डिसइन्वेस्टमेंट? देखिए यहीं पे आपको सबसे पहले आपको डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग अगर क्लियरली पता नहीं होगा सो इट विल बी नॉट गुड. कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि अब जो भी गवर्नमेंट क्या है, कोई भी कंपनी को सोल्ड आउट कर देती, पब्लिक पीएसयू को सोल्ड आउट कर देती प्राइवेट सेक्टर को, तो उस पर उसकी कोई भी अथॉरिटी नहीं रहेगी. अब यहाँ पे ये नहीं है कि वो उसको सोल्ड आउट कर देगी तो जो लॉस हो रहा था फिर उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करके फिर वो उसकी हो जाएगी. नहीं, वहाँ पे वो क्या कर रही है, उस पीएसयू को ही सोल्ड आउट कर दे रही है प्राइवेट सेक्टर को. सो इन दैट केस वो डिसइन्वेस्टमेंट कोई भी अच्छा टूल नहीं होता है. बिकॉज अगर किसी भी गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है तो वो अगर कंटिन्यूसली उसको लॉस हो रहा है तो ये उसके लिए बेटर कंडीशन नहीं होती है. इसलिए नहीं होती बिकॉज वो अगर उसका लॉस हो रहा है तो उसका रेवेन्यू जो जनरेट होता है डिफरेंट पीएसयू से, वो भी उसका जनरेशन कम हो गया. जब अगर गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं होगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी नहीं कर सकती. कहाँ से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी? तो ये जो क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है, तो इसका असर्शन, और असर्शन इज राइट, असर्शन क्या है, वो सही है, और रीजन भी सही है क्योंकि टूल इज गुड. टूल सही है कि वो डिस्कार्ड कर दे रही है जो भी लॉस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को हो रहा है. बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं है बिकॉज इसलिए नहीं गवर्नमेंट करती है कि अगर वो डिस्कार्ड कर दे रही है, लॉस हो रहा है पीएसयू को, तो इसलिए वो क्या कर देती है, सारे को सोल्ड आउट कर देती है. बिकॉज जो 6 यूनिट होती है वो हेल्दी यूनिट में कन्वर्ट नहीं हो सकती हैं. इन दैट केस गवर्नमेंट क्या कर देती है, उनको सोल्ड आउट कर देती है. तो इसका आंसर क्या होगा, बी वाला राइट होगा. बी वाला क्या होगा, बोथ assertion and reason are correct but R is not correct explanation of A. ठीक है, R क्या है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है A का. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21. Right? Next question is, that is question number 22. 22 क्वेश्चन कह रहा है कि from the set of the events or the system in column 1, कि कुछ सिस्टम, कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं कॉलम 1 में और कॉलम 2 में. ठीक है, तो कह रहा है रेलिवेंट गिवन फैक्ट अबाउट चाइना के बारे में, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट, कि इसमें से करेक्ट पेयर आपको चूज करना है. तो इसमें दे रहा है GLF, ग्रेट लीप फॉरवर्ड. ठीक है, इसमें कह रहा है कि कल्टिवेटिंग लैंड कलेक्टिवली, कि GLF में क्या हुआ था, सॉरी इट इज F, GLF में क्या हुआ था, कह रहा है कि लैंड को कलेक्टिवली क्या किया, कलेक्टिव करके वहाँ पे प्रोडक्शन किया जा रहा है. बट हमें पता है कि GLF ग्रेट लीप फॉरवर्ड में क्या हुआ था, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा मोटिव किया गया. तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. सेकेंड कह रहा है कम्यून सिस्टम, कम्यून सिस्टम में कह रहा है ओपनिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज इन देयर होम,
कि कम्यून सिस्टम में क्या गया था कि इंडस्ट्रीज को ज़्यादा ओपन करने को कहा जाता है। एग्जाम में कम्यून सिस्टम में क्या होता है, जो भी लैंड क्या है स्कैटर्ड है या जो लैंड अलग अलग हैं उनको क्या है कलेक्टिवली करके एक साथ करके हमें क्या करना है उस पर प्रोडक्शन करना है। तो सेकंड आपका क्या था, कम्यून सिस्टम। तो ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर आपका दे रहा है प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। इसमें दे रहा है कि स्टूडेंट वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड, कि जो भी ये आपका प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ था, इसमें जो भी स्टूडेंट्स थे, जो भी प्रोफेशनल्स थे, उनको एक लर्निंग प्लेस पे, एक ऐसी जगह पे भेज दिया गया था, कंट्री साइड पे भेज दिया गया था, रूरल एरियाज में, जहाँ से वो कुछ अर्न करके आए, कुछ सीख के आए। हाँ, तो यही तो हुआ था इसमें प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। तो हमें ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। अब लास्ट स्टेट देख लेते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म इन चाइना। इकोनॉमिक रिफॉर्म इन चाइना, चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, इसमें दे रखा है 1988। और हमें पता है इकोनॉमिक रिफॉर्म चाइना में कब हुआ था, 1988 में नहीं हुआ था, 1978 में हुआ था। 1988 में पाकिस्तान में हुआ था, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सो द क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन द थर्ड पॉइंट आप लोग लिख दोगे, थर्ड इज राइट आंसर। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23. So the question is fill in the blanks is given here. ऐसे fill in the blank दिया है, आगे कह रहा है adopted one child policy. One child policy. Okay, one child policy as a measure to control population. कि population को control करने के लिए one child policy adopt किया गया है। तो उसमें नीचे कंट्रीज हैं, पहला है इंडिया, सेकेंड वन इज चाइना, थर्ड वन इज पाकिस्तान एंड द फोर्थ वन इज रशिया. वी नो वेरी वेल द आंसर विल बी चाइना. ये बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं कि वन चाइल्ड पॉलिसी, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, हाईएस्ट पॉपुलेशन है ऑल ओवर दी, जितनी भी कंट्रीज हैं इंडिया में कह रहे हैं, पूरी कंट्रीज जितनी हैं उनमें जो फर्स्ट नंबर पे कौन है वो, दैट इज चाइना. तो उन्होंने क्या किया, वन चाइल्ड पॉलिसी का नॉर्म्स लेकर आए, जैसे वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके. ओके, सो आफ्टर दैट देयर इज वन पैसेज इज गिवन हियर. यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज के बेसिस पे देयर आर 5 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम दी 24 to 27. कि 24 से 27 तक क्या है क्वेश्चन दिया है, विच इज बेस्ड ऑन दी one passage. So passage is, since ages farmers in India have taken recourse to debt in the earlier times, the same was from the informal sources. Since independence, with the efforts of the government, formal sector has actively come into picture. Farmers borrow not only to meet their investment needs but also to satisfy their personal needs. Uncertainty to income caused by factors like crop failure caused by irregular rainfall, reduction in the groundwater table, locust, other pest attack, etc. So these reasons push them into a clutches to the private money lenders who charges exorbitant rates of the interest, which add to their miseries. Various government in India at different times for the different reasons introduced debt relief waiver schemes. These schemes are used by the government as a quick means to extricate farmers from their indebtedness, helping to restore their capacity to invest and the produce. In short, to lessen the miseries of the farmers across India. The cost and the benefits of the such debt relief schemes are, however, a widely debated topic among economists, since economists argue that such schemes are extremely beneficial to the poor and the marginalized farmer, while others argue that these schemes add to the fiscal burden of the government.
Other believe that these schemes may develop the expectation of the repeated bailouts among farmers, which may spoil the credit culture among farmers. Okay, so this is given the passage दिया है, इसमें कह रहा है uncertainty of income for the farmer in India majority caused by, पैसेज पढ़ोगे उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा, जिसमें कह रहा है इरेगुलर रेनफॉल और द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द लोन, बट क्या था, इरेगुलर ऑफ रेनफॉल। तो 24 का आंसर हो गया इरेगुलर ऑफ रेनफॉल। ठीक, अब आपको जब ये पैसेज पढ़ोगे तो उसमें आपको सारा इसका आंसर मिल जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है कि इट इज आउट फ्रॉम योर पैसेज में ही आपको ये लाइन मिल जाएगी कि वहाँ पे क्या है कि उनका जो भी अनसर्टेनिटी उनकी इनकम की क्यों थी, बिकॉज ऑफ द इरेगुलर रेनफॉल, क्योंकि वो लोग क्या थे, मानसून पे ही डिपेंडेंट होते हैं। बट अगर मानसून टाइम से नहीं आया, रेनफॉल टाइम से नहीं हुआ, सो दैट वहाँ क्या हो जाएगा कि अनसर्टेनिटी इनकम की हो जाती है, बिकॉज प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो सो दैट देयर विल बी नो इनकम जनरेशन, इनकम का भी जनरेशन नहीं होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो द क्वेश्चन विल बी 24 is irregular rainfall. Next question is question number 25. So the some economists argued that debt waiver scheme are extremely beneficial to the poor and the marginalized farmer, as these scheme reduce the burden of the उसमें ऑप्शन दे रहा है indebtedness and the personal expenditure। तो हमने यहाँ पे भी लाइन भी पढ़ी थी जिसमें यही था कि जो भी इकोनॉमिक्स आर्ग्यू कह रहे थे, जो भी वेवर स्कीम्स वाले हैं जिनको रिलीफ स्कीम प्रोवाइड की जा रही थी कि अगर वो शॉर्टेज के कंडीशन पे हैं तो उनको वहाँ से रिलीफ प्रोवाइड करना है, तो बेनिफिशियल टू द पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स एज दीज स्कीम्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ योर, ऑप्शन में दे रहा है इनडेटनेस और द पर्सनल एक्सपेंडिचर। तो इसमें हो जाएगा आपका इनडेटनेस में ही, देखिए इसमें लाइन एकदम एग्जैक्टली दी है, दीज स्कीम्स आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट एज क्विक मीन्स टू एक्सट्रिकेट फार्मर्स फ्रॉम देयर इनडेटनेस। तो आपका 25 का आंसर हो जाएगा इनडेटनेस। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 26, एकदम सिंपल सा पैसेज है, उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन है। सो द रूरल बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो रूरल बैंकिंग है उसमें क्या है, मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस है, जैसे हो गया आपका आरआरबी हो गया, सिडबी हो गया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इज एक्सपेक्टेड टू डिस्पेंस क्रेडिट एट द चीपर रेट फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस टू द फार्मर्स। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि जैसे ऑप्शन दे रहा है कि द रूरल बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ द मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, उस इंस्टीट्यूशंस में आपके पास ऑप्शन दे दिया है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक और दी सिडबी का। अब उन दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि रीजनल रूरल बैंक होते हैं जो एग्रीकल्चरल एरिया में होते हैं, मतलब रूरल एरियाज में होते हैं, जो चीप रेट पे क्या होते हैं, इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया रीजनल रूरल बैंक। ओके, नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पैसेज इज दैट दी फिल इन द ब्लैंक्स इज गिवन हियर, फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है और बोल रहा है कि जैसे यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स, फिर कह रहा है इज द मोस्ट प्रोमिनेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लोन फॉर द लॉन्ग टर्म लैंड डेवलपमेंट। तो ऑप्शन में दे रहा है आरआरबी एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। इसके आगे कह रहा है कि ऐसे कौन से, इन दोनों में से कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो लैंड के डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। अब आपको बता दिया गया आरआरबी क्या करता है, वो चीप रेट पे लोन प्रोवाइड करता है, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है वो बहुत ही कम होता है। और लैंड डेवलपमेंट क्या होते हैं कि जैसे लोग क्या करें, लैंड के डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लैंड डेवलपमेंट बैंक। ओके, सो हम लोग यहाँ से पैसेज एक क्या कर लिया, पैसेज पढ़ लिया, जिसमें पैसेज का 24 से 27 तक रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे पैसेज से रिलेटेड वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। सो फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ 1 मार्क।
जो 1 मार्क के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हम लोग ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग इससे आगे रिलेटेड जो भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। ओके, सो थैंक यू।